Class 12th, Lesson 8, Ends and Means. Questions and Answers. Question 1. Who was Swami Arvasu? स्वामी अरवसु कौन थे? आंसर: ही वॉज अ मॉन्क. आंसर: ही वॉज अ मॉन्क. वे एक सन्यासी थे. क्वेश्चन 2. व्हाट वॉज ही डूइंग अंडर द बनियन ट्री? What was he doing under the banyan tree? वे बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? कृपया ध्यान दें, इस प्रश्न में स्वामी अरवसु के बारे में पूछा जा रहा है. आंसर: he was sitting under the banyan tree addressing his faithful. Answer: he was sitting under the banyan tree addressing his faithful. वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने निष्ठावानों को संबोधित कर रहे थे. Question 3. With what intention did Birju join the sage's discourse? Question 3. With what intention did Birju join the sage's discourse? बिरजू किस कारण मनीषी के प्रवचन में शामिल हुआ था? आंसर: he joined the discourse as he thought he would be able to pick some pockets. He joined the discourse as he thought he would be able to pick some pockets. वह प्रवचन में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसने सोचा था कि वह कुछ जेब काटने में सफल होगा. Question 4. How was Birju affected with Swami Arvasu's discourse? Question 4. How was Birju affected with Swami Arvasu's discourse? स्वामी अरवसु के प्रवचन का बिरजू पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर: he was greatly moved and decided to become Swami Arvasu's follower. He was greatly moved and decided to become Swami Arvasu's follower. वह अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने उनका अनुयायी बनने का निश्चय कर लिया. Question 5. Describe in your words the conversation between the sage and the thief when Birju asked to become a disciple. मनीषी और चोर के बीच जब बिरजू ने उनका अनुयायी बनने की प्रार्थना की, जो वार्तालाप हुआ था उसे अपने शब्दों में लिखिए. When Birju asked Swami Arvasu to take him as his disciple, the sage told him that the life of a monk is full of hardships and he didn't think that Birju would be able to cope with it. Then Birju said that if he was not taken as a disciple, he will either
have to go back to his old profession or to end his life. जब बिरजू ने स्वामी अरवसु से उसे अपना अनुयायी बनाने का आग्रह किया, तब मनीषी ने बताया कि एक सन्यासी का जीवन बहुत कठिन होता है और वे नहीं समझते हैं कि बिरजू उसे निभा पाएगा। तब बिरजू ने कहा कि यदि उसे अनुयायी नहीं बनाया गया तो या तो उसे अपने पुराने जीवन में लौट जाना पड़ेगा या फिर अपना जीवन समाप्त कर देना पड़ेगा। Question 6. On what condition did the sage make बिरजू his disciple? मनीषी ने बिरजू को किस शर्त पर अपना अनुयायी बनाया? Answer. The condition was that he will not misbehave in future. शर्त यह थी कि वह भविष्य में दुराचार नहीं करेगा। Question 7. What happened when Birju went to collect firewood? जब बिरजू आग के लिए लकड़ी लेने गया तब क्या हुआ? Answer. When Birju went to collect firewood, he was forced by the poverty of a woman and her two hungry children to commit theft. जब बिरजू आग के लिए लकड़ी लेने गया तब वह एक औरत तथा उसके दो भूखे बच्चों की गरीबी को देखकर चोरी करने के लिए मजबूर हो गया। Question 8. What did Birju see when he peeped into the hut? जब बिरजू ने झोपड़ी में झांका तो उसे क्या दिखाई दिया? Answer. When Birju peeped into the hut, he saw two children huddled up in a corner and a woman trying to give them an impression that something was being fried. जब बिरजू ने झोपड़ी में झांक कर देखा, उसे दो बच्चे एक कोने में सिमटे हुए बैठे दिखे और एक महिला यह भाव प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रही थी कि कुछ तला जा रहा है। Question 9. How did the woman in the hut react when she saw बिरजू? जब झोपड़ी के अंदर वाली महिला ने बिरजू को देखा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? Answer. She was surprised to see a person in saffron clothes. She went to him and touched his feet. उसे केसरिया वस्त्रों में एक मनुष्य को देखकर आश्चर्य हुआ। वह उसके पास गई और उसके चरण छुए। Question 10. How did the poor woman trick her hungry children to sleep? गरीब महिला ने अपने भूखे बच्चों को सुलाने के लिए क्या युक्ति की? Answer. She kept on sprinkling a few drops of water every few minutes in a pan which was being heated on fire. वह थोड़ी थोड़ी देर में
आग पर गर्म हो रहे तवे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क रही थी। क्वेश्चन 11. How did Birju help the woman feed her children? महिला अपने बच्चों को भोजन करा सके, इसके लिए बिरजू ने उसकी कैसे मदद की? आंसर: He broke open the lock of a grocery store and filled 2 bags with provisions, which he gave to the woman. उसने एक किराने की दुकान का ताला तोड़कर 2 थैलों में खाद्य सामग्री भरी और उसे महिला को लाकर दे दिया। क्वेश्चन 12. How did Swami Arvasu react when Birju told him what he had done? जब बिरजू ने स्वामी अरवसु को बताया कि उसने क्या किया है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? आंसर: When Birju told him what he had done, Swami Arvasu got very angry and asked him to go away and never show his face again. जब बिरजू ने उन्हें बताया कि उसने क्या किया था, तो स्वामी अरवसु बहुत क्रोधित हुए और उसे चले जाने तथा भविष्य में उसकी शक्ल कभी न दिखाने को कहा। क्वेश्चन 13. What miracle did the sage and his followers witness the next morning? दूसरे दिन सुबह मनीषी और उसके अनुयायियों ने क्या चमत्कार देखा? आंसर: They saw that a celestial vehicle descended from the sky and a well-dressed man came out of it. He looked for Birju and took him away with him. उन्होंने देखा कि एक अलौकिक वाहन आकाश से उतरा और उसमें से एक कुलीन व्यक्ति बाहर आया। उसने बिरजू को खोजा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। क्वेश्चन 14. What did Swami Arvasu think on seeing the celestial vehicle? अलौकिक वाहन को देखकर स्वामी अरवसु ने क्या सोचा? आंसर: He thought that it had come to take him to heaven and that his moment of nirvana had come. उन्होंने सोचा कि वह वाहन उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया है तथा उनका निर्वाण का क्षण आ गया है। क्वेश्चन 15. What according to Brahmadatta made Birju the thief nobler than Swami Arvasu the sage? ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू एक चोर, स्वामी अरवसु एक मनीषी से किस कारण महान हो गया? आंसर: Birju's theft last night was for feeding the hungry and not for any personal gain. This made his deed nobler and he surpassed Swami Arvasu the sage. पिछली रात बिरजू द्वारा चोरी भूखों का पेट भरने के लिए की गई थी,
न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। इसने उसके कार्य को महान बना दिया और उसने स्वामी अरबसु एक मनीषी को पीछे छोड़ दिया। क्वेश्चन 16. Do you think that the title of the story is suitable to its content? कहानी की विषय वस्तु को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि उसका शीर्षक उचित है? आंसर: द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज डेफिनेटली suitable because it focuses attention on the means used and the end for which they were used. कहानी का शीर्षक निश्चित रूप से उचित है क्योंकि यह साधन पर ध्यान देता है और इस बात पर भी ध्यान देता है कि यह साधन किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया गया है। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस लेसन के वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में लेखक एवं पुस्तक का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। भाग 2 में लेसन की हिंदी व्याख्या एवं कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए हैं। भाग 3 में क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए हैं।